fitness. Now, what is fitness and what is wellness? It is a state being of healthy, or you can say when we spend our life in a particular manner, like physically, mentally, emotionally, in a balanced manner, that is called the fitness of a person. Now, what is lifestyle? Lifestyle is the way you have to spend the life. It is the way or the attitude generally a person used to do. Now, let us go to the importance of physical fitness and wellness. As we all know that we are, or the human being of a particular nation is the national property. It is an asset. If the human beings or the individuals of a particular country is healthy, then the output of that country or the set of that country is very healthy, and they give the maximum output for the work. How we can maintain or how we get this thing in a physical or in a wellness order. ठीक है बेटा, what is the importance of physical fitness and wellness? So first of all, to improve our body system. How we can improve our body system? First importance is improve our body system. When we do the physical activity in a proper manner or doing our work in a proper manner, obviously the different organs of body start working in a very good manner. And as take an example of a machine, because as I told you earlier that our body is like a machine. अगर बॉडी का मशीन का एक भी पार्ट जो है वो थोड़ा बहुत भी ढीला हो जाए या इट इज नॉट इन अ वर्किंग ऑर्डर, then what is happened beta, as you all know, that the load goes to the other parts of the machine part, and where the working is slow down. In the same way, when our body or when the organs of different body parts are not working in a proper order, the load goes to the other organs of the part, and the output will be less or not so efficiently we can do the work. So for this, the physical activity is required to improve our body system. फिजिकल एक्टिविटी का करना बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को प्रॉपर मूव करवाने में, प्रॉपर वर्किंग करवाने में, ताकि वो हमें मैक्सिमम आउटपुट दे सकें. इज इट क्लियर टू यू बेटा? देन मेक आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग. हमारी जो मसल्स हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग करते हैं. मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं. ऑब्वियसली मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है टू गेट द मैक्सिमम वर्क फ्रॉम दिस पार्ट. ठीक है बेटा, हमारी बॉडी जो है वो क्या करती है, वर्किंग तभी कर सकती है जब हम एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ करते हैं, बिकॉज जो डिले ऑफ रिएक्शन टाइम है वो कब अच्छा होता है, जब हमारी बॉडी जो है उसका सेटअप बहुत ही अच्छा हो. अदरवाइज हम क्या करते हैं, नॉर्मली क्या हो जाता है कि हमें थकान जल्दी हो जाती है और हमारे काम करने की जो क्षमता है, द इफेक्ट और द एफिशिएंसी ऑफ द वर्क विल बी लेस. इज इट क्लियर टू यू बेटा? नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू मेंटेन द बॉडी पोस्चर. हमारी बॉडी का पोस्चर जो है वो कैसे होगा या इम्प्रूव होगा? इम्प्रूव बॉडी पोस्चर. What is body posture beta or a posture? The sitting, standing or the laying position of a body. How we can, because it is the appearance of, first of all it is the appearance of our body. क्या हम देखते हैं सबसे पहले जिसकी appearance smart हो? When we are standing like this, bending our shoulders or taking our neck forward or bending or taking out our belly, ये हमारी पर्सनालिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है. और आवर गेट, हमारी चाल, अगर हम चलते ठीक से नहीं हैं, बैठते ठीक से नहीं हैं,
फर्स्ट ऑफ ऑल सच टाइप्स ऑफ डिफॉर्मिटीज जो हैं दैट लीड्स टू फटीग। फटीग का मतलब है थकान होना। अगर हम प्रॉपरली, अगर आप अपना ही एग्जाम्पल ले लो बेटा, तो क्या है, whenever the teacher enters your class, she says, beta, sit properly. What does it mean? Sitting properly means keep your posture in such a condition that you can feel a less fatigue and take or getting the more things in your। इसलिए हमारी बॉडी पोस्चर जो है उसका करेक्ट होना बहुत ही जरूरी है। इज इट क्लियर टू यू बेटा? हमारी बॉडी का पोस्चर जो है वो हमें ठीक होना चाहिए। फॉर व्हाट? फॉर द लेस फटीग। हमारी जो थकान है वो कम होगी तो हमारी आउटपुट जो है वो ज्यादा होगी। वी कैन गेट द मैक्सिमम वर्क फ्रॉम दैट। नाउ दैट इज रिमूव द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन और द डिप्रेशन। नॉर्मली क्या होता है बेटे, जो बच्चे या जो इंडिविजुअल भी, एनीवन दैट इज लेस स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, ये क्या होता है? It means when we are doing our work in a proper manner, obviously we are good physically as well as mentally। और जब हम मेंटली गुड होंगे तो हमारी आउटपुट जो है, आउटपुट इन द सेंस कि हमें थिंकिंग, हमारी वेज जो है, हमारा नजरिया जो है वो बदल जाता है। एंड व्हेन वी डू द वर्क इन अ प्रॉपर मैनर, वी रीच अवर गोल। हम अपने गोल तक पहुंच जाते हैं और जब हम अपने गोल तक पहुंचते हैं हमें सेटिस्फेक्शन हो जाती है। ऑल दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड बेटा। इसलिए हमारा फिजिकली और मेंटली करेक्ट होना बहुत ही जरूरी है, फिटनेस होनी बहुत ही जरूरी है। वाई? बिकॉज व्हेन वी डू द वर्क इन ए प्रॉपर मैनर, वाई इट इज लेस? बिकॉज वी आर गेटिंग व्हाट वी वांट। और जब हम अपनी चीज, अपनी इच्छा की, डिजायर की चीजों को प्राप्त कर लेते हैं, और when we get the desired things, we are mentally and physically satisfied। So for this, physically active or a physically fitness and mental fitness is there, it is very necessary और important for us। ठीक है, हमें कोई भी साउंड करने के लिए, बॉडी के अच्छी आउटपुट के लिए हमारा फिजिकली फिट होना और मेंटली फिट होना बहुत ही जरूरी है। These are the importance of physical fitness and wellness। ठीक है बेटा। उसके बाद आता है हमारा कि जब हम कोई भी डिजीज से फ्री होते हैं, ऑब्वियसली जब हम काम अच्छे से करेंगे, when we are doing the activities in a proper manner, लेथार्जिक या स्लैकनेस ऑफ आवर बॉडी जो है वो खत्म हो जाएगी और हमारी मैक्सिमम चीजें जो हैं वो टाइम मैनेजमेंट के साथ, यानी कि टाइमली वी कैन फिनिश अवर वर्क। एंड व्हेन वी फिनिश अवर वर्क टाइमली, स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। स्ट्रेस लेवल कम होगा तो आउटपुट ज्यादा होगी। नाउ दीज ऑल थिंग्स आल्सो डिपेंड अपॉन द लाइफस्टाइल। नाउ व्हाट इज लाइफस्टाइल बेटा? द वे यू स्पेंड द लाइफ, द वे ऑफ एटीट्यूड। आप अपनी जिंदगी को या अपनी लाइफ को कैसे जीते हो, दैट कम्स अंडर द लाइफस्टाइल ऑफ अ इंडिविजुअल और अ पर्सन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ पेरेंट्स ऑल्सो। अगर हम दूर नहीं जाए, क्योंकि वो आप लाइव देखते हो, या आपके घर में अगर बड़े बूढ़े हैं तो आप उनका भी देखते हो। दे यूजुअली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज एज अकॉर्डिंग टू द राइम, early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise। Here the healthy, wealthy means that doesn't only a money. When you are doing a work in a proper manner with a proper time, with everything, you are always free from hurry, worry and curry। ठीक है बेटा, ये हमारे लाइफस्टाइल में सबसे पहले है। हरी हमें कब होती है, जल्दी हमें कब होती है? जब हमारे पास शॉर्टेज ऑफ टाइम होता है। हमारे पास शॉर्टेज ऑफ टाइम कब होता है? व्हेन वी आर नॉट डूइंग आवर वर्क इन अ प्रॉपर मैनर और वी आर नॉट मैनेजिंग आवर टाइम। और वरी जो है, चिंता, हरी वरी, और उसके कारण ही हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण हमसे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा या गलत काम हो जाते हैं। ठीक है। और उसके मेन रीजन क्या है? टेकिंग अ प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट, डूइंग द एक्सरसाइजेज इन अ प्रॉपर मैनर
and later how to manage your time. These are the main thing for a better life or a good lifestyle. कि हरी वरी एंड करी मीन्स हरी होती है जब हम टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं, वरी होती है व्हेन वी आर हैविंग अ शॉर्टेज ऑफ टाइम. व्हाई शॉर्टेज ऑफ टाइम? बिकॉज वी हैव नॉट मैनेज द थिंग्स इन अ प्रॉपर मैनर. और फिर उसके बाद हमारी फूड मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है बेटा, जैसे पुराने लोग कहते थे या अर्ली पीपल यूजुअली दे स्लीप एट अ प्रॉपर टाइम, लेकिन आजकल हमारा कोई टाइम नहीं है सोने का. वी आर नॉट स्लीपिंग एट अ प्रॉपर टाइम, वी आर नॉट गेटिंग अप एट अ प्रॉपर टाइम इन अ प्रॉपर मैनर. और उसके बाद हमारी बॉडी जो है कई बार इतनी ज्यादा थकी होती है, दे आर नॉट अलाउइंग अस टू डू द वर्क इन ए गुड मैनर. और उसके बाद क्या होता है, हमारे पास शॉर्टेज ऑफ टाइम हो जाती है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है हमारा, और जिसके कारण हमारी आउटपुट जो है वो जीरो रहती है. ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द फिटनेस कंपोनेंट्स. हमारी बॉडी के वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमारी फिटनेस में हेल्पफुल हैं, या जिनमें से एक की भी कमी होने के कारण जो है वी आर नॉट एबल टू डू द वर्क इन अ प्रॉपर मैनर, एनी फिजिकल एक्टिविटी. So let us discuss that. How many components are there बेटा? फिजिकल फिटनेस के कितने कंपोनेंट्स हैं? They are 5. 5 components are there बेटा. First one is strength. सबसे पहला कौन सा है हमारा? स्ट्रेंथ. ठीक है, व्हाट इज स्ट्रेंथ? कैन एनीवन टेल? रेज योर हैंड बेटा. स्ट्रेंथ किसे कहते हैं? दिपिन, यू हैव कम फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. समृद्धि आप बताओ बेटा. हाँ जी, आप बोलो बेटा क्या होता है? यस, स्ट्रेंथ इज द कैपेसिटी टू डू द वर्क अंडर द रेसिस्टेंस. ठीक है ना, ओवरकम द रेसिस्टेंस. ठीक है, इसमें 3 पार्ट्स हैं बेटे इसके. वन इज आइसोमेट्रिक, isotonic, and third was this isokinetic. ठीक है बेटा, where the iso means आइसो का मतलब होता है सेम. सेम मसल्स का जो है यहां पर सेम है. ठीक है बेटा. मेट्रिक मीन्स लेंथ. प्लैंक्स देखे हैं या करे हैं कभी? ठीक है, वहां पर क्या होता है बेटा? प्लैंक्स जब आप करते हो तो क्या होता है? कैन एनीवन आंसर? व्हेन यू आर डूइंग प्लैंक्स व्हाट विल हैपन बेटा? मसल्स की लेंथ है वो सेम रहती है, उस पर स्ट्रेस या टेंशन पूरी रहती है, लेकिन आउटपुट जो है वो जीरो होती है. द सेम इज द केस ऑफ व्हेन वी आर पुशिंग द वॉल. ठीक है, वॉल पुश करते हुए दीवार को या हाई कंटेनर जो काफी भारी कंटेनर होते हैं, अगर हम उनको पुश करें तो हमारा वर्कआउट क्या है? जीरो होगा, जबकि हमारी बॉडी जो है या मसल्स जो हैं उन पर पूरी एक्सर्शन या टेंशन रहती है. ठीक है, नेक्स्ट इज आइसोटोनिक. ठीक है बेटा, आइसोटोनिक क्या होता है बेटा? आइसो मीन्स सेम, बट हेयर द लेंथ ऑफ द मसल्स इज विजिबल. जैसे हम स्क्वाट्स वगैरह करते हैं, ठीक है, जिसमें बैठना उठना हमारी क्या होता है या लेटकर, उसमें क्या होता है? स्क्वाट्स में विजिबिलिटी ऑफ मसल्स आते हैं, जो भी हम वर्क करते हैं वो इजीली हमें नजर आता है. अब इसके अंदर क्या होता है, जो आइसोमेट्रिक है, विजिबिलिटी नहीं होने के कारण इसे हम स्टैटिक भी बोलते हैं. आइसोटोनिक जो होता है इसे डायनेमिक भी कहा जाता है.
अब डायनेमिक जो है बेटा ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। दिस डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स। स्ट्रेंथ का पहला है स्टैटिक, दूसरा है डायनेमिक, तीसरा है आइसोकिनेटिक। ठीक है, आइसोमेट्रिक में क्या होता है, हमारी जो मसल्स हैं उसकी एक्सर्शन पूरी होती है, लेकिन विजिबिलिटी जो है, लेंथ ऑफ द मसल्स जो है वो नजर नहीं आती है। इसका एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया है प्लैंक से। ठीक है, नेक्स्ट वन जो है हमारा दैट इज, उसका है हमारा नेक्स्ट वन इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक के अंदर विजिबिलिटी ऑफ मसल्स वर्क होती है, आउटपुट नजर आता है हमें, जैसे हम स्क्वैट्स वगैरह करते हैं। ये फर्दर जो है इसे डायनेमिक भी कहते हैं। एंड फर्दर दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है बेटा, 3 पार्ट में है। पहला है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम? एक्स्ट्रा, खूब। ठीक है, एक्स्ट्रा या खूब जो स्ट्रेंथ हमारी लगती है, जैसे हम लिफ्टिंग करते हैं। ठीक है बेटा, किसी चीज की लिफ्टिंग या रेसलिंग में उठाकर किसी को मारना, पटकना, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? ये आती हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एक्सप्लोसिव एंड्योरेंस। एक्सप्लोसिव एंड्योरेंस क्या होता है? एक्सप्लोसिव का मतलब कोई बताएगा बेटा? एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ क्या होती है? एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बेटा, एनी वन ऑफ यू कैन रेज योर हैंड बेटा। व्हाट इज एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ? एक्सप्लोसिव मतलब विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पीड। जब हम देखते हैं ना वोल्केनो वगैरह एक्सप्लोड होता है या कोई बॉम्ब एक्सप्लोड होता है, तो स्पीड जो है उसकी बहुत फास्ट होती है। इन द सेम वे एक्सप्लोसिव यहाँ पर स्ट्रेंथ का क्या है बेटे? जब हम शॉर्टपुट को विथ फुल स्पीड थ्रो करते हैं, वो इसके अंदर आता है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के अंदर। इज इट क्लियर टू यू बेटा? नाउ द नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। द वर्ड एंड्योरेंस इटसेल्फ क्लियर कि क्या चीज है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, ये अपने आप में ही क्लियर होता है। एंड्योरेंस under the condition of fatigue also when you are continuously doing some work। ठीक है ना बेटा, जब हम under the condition of work जो है, under the condition of fatigue भी, थकान होने के बावजूद भी हम कंटिन्यू उसको काम को करते रहते हैं, नो डाउट इंटेंसिटी ऑफ वर्क जो है वो स्लो होता है। ठीक है, स्पीड उसकी स्लो होती है, लेकिन वो वर्क जो है वो कॉन्टिन्यूस लेवल पर ही चलता रहता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। इज इट क्लियर टू यू बेटा? इज इट क्लियर? रेज योर हैंड बेटा इफ इट इज क्लियर टू यू। यस, यू पीपल आल्सो गिव द आंसर कि हाँ स्ट्रेंथ एंड्योरेंस जो है वो क्लियर है। इज इट क्लियर टू यू बेटा? शुड आई मूव टू नेक्स्ट पॉइंट? Next is, first component is strength, another one is speed. What is speed? Speed किसको कहते हैं? Maximum distance and minimum time। ठीक है ना? Coverage of maximum distance in minimum time। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम स्पीड कहते हैं। नाउ स्पीड हैज 5 पार्ट्स। दे आर नंबर 1, 2, 3 and 4। इसके 5 पार्ट हैं। ठीक है, टाइप्स हैं, नॉट पार्ट। स्पीड हैज 5 टाइप्स। सबसे पहले हम लेते हैं एल, लोकोमोशन।
locomotion speed beta. Next one is acceleration. Third one is speed movement. नेक्स्ट क्या होगी स्पीड मूवमेंट के साथ और कौन सी हो सकती है एनीवन कैन गेस स्पीड स्ट्रेंथ ठीक है कितनी है उसके बारे में हम नॉर्मली लेते हैं कि इसकी जो स्पीड स्ट्रेंथ है वो कितनी होगी हाँ जी एंड लास्ट वन इज रिएक्शन एबिलिटी ठीक है बेटा दीज आर द 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड और स्पीड क्या है मैक्सिमम डिस्टेंस मैक्सिमम वर्किंग मैक्सिमम कवरेज एंड अ मिनिमम टाइम इज इट क्लियर टू यू बेटा इज इट क्लियर नाउ शुड वी मूव टू द फर्दर नेक्स्ट पॉइंट इज एंड्योरेंस व्हाट इज एंड्योरेंस doing the work continuously under the condition of fatigue ठीक है बेटा इसमें बेटे 2 टाइप्स होती हैं एक है शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस एक है लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस another one is long term you can also say short term जो है anaerobic और long term aerobic now what is anaerobic and aerobic कोई बताएगा बेटे anaerobic और aerobic क्या चीजें होती हैं Can anyone please raise your hand if anybody knows what is aerobic? करते रहते हैं ना आप एरोबिक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं बहुत ही आजकल तो इसका रिवाज चला हुआ है जी एरोबिक करने जा रहे हैं देन व्हाट इज एरोबिक एंड व्हाट इज एनारोबिक हाँ जी आदित्य मुगराई आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कैन यू टेल पायल अमनप्रीत एरोबिक क्या होता है बेटे एंड एनारोबिक क्या होता है एरोबिक एनारोबिक एंड एरोबिक एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन ठीक है यानी कि बिल्कुल हम जिसमें एक सांस में ही कोई काम कर जाते हैं और एरोबिक जो हाई लेवल का कॉन्टिन्यूस पैटर्न में काम किया जाता है जहाँ पर इंटेंसिटी हमेशा लो होती है ठीक है इसमें हमेशा इंटेंसिटी जो है वो लो होती है इसमें इंटेंसिटी हमेशा हाई होती है एकदम से झटके से के साथ काम को करना है जैसे स्प्रिंट्स मतलब स्प्रिंट्स का मतलब है एकदम से रेस 100 मीटर 200 दैट कम्स अंडर स्प्रिंट्स शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस जो हैं उन्हें हम कहते हैं स्प्रिंट्स ठीक है ना बेटा उनको हम क्या कहते हैं स्प्रिंट्स और इसके अंदर हमें क्या होता है हमें एनारोबिक intensity high से that is a flexibility of a body
ठीक है, हम कहते हैं ना कि वो कितना बेंड हो जाता है, उसकी टर्न कैसी हो जाती है, व्हाट इज दैट, दैट इज अ फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी एडप्शन जो है उसे हम कहते हैं। जॉइंट्स का एट द मैक्सिमम एक्सटेंट तक जो है उसका एक्सटेंड होना, दैट इज कॉल्ड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ बॉडी और अ जॉइंट्स। ठीक है, अब ये 2 टाइप्स की होती हैं। पहली होती है static, another one is dynamic, sorry, पहली होती है पैसिव, दूसरी होती है एक्टिव। एक्टिव के अंदर फर्दर ये 2 पार्ट्स में होती है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। जिम्नास्टिक इज द, ये जो जिम्नास्ट होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी का ही रिजल्ट है कि जो जिम्नास्ट हैं दे कैन डू सच टाइप्स ऑफ एक्टिविटी इन अ वेरी स्मूथ मैनर। ठीक है, ये जिम्नास्ट होते हैं जो इजीली कर लेते हैं। अब स्टैटिक क्या है, सॉरी पैसिव क्या है और एक्टिव क्या है, आपने अपने स्कूल में ही देखा होगा, सर जब आपको करवाते हैं या छोटे बच्चों को जिम्नास्टिक करवाते हैं तो यू माइट हैव सीन दैट इन अ स्टार्टिंग such types of students or individuals need some help. ठीक है ना बेटा, after practicing they are able to do it themselves individually and independently. जब तक उन्हें प्रॉब्लम, जब तक उन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है या एक्सटर्नल सपोर्ट जो है उन्हें दी जाती है, दैट कम्स अंडर द passive way and moreover it is a support and a stationary position में किया जाता है। उसके बाद क्या होता है बेटे, एक्टिव में जो है उसमें क्या आ जाता है, उसके अंदर मुकाम जो है, और जो एक्टिव होते हैं दे डोंट नीड एनी टाइप ऑफ सच थिंग। ठीक है, उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होती है, वो अपने आप ही ये एक्टिविटी को इजीली विदाउट द हेल्पिंग ऑफ अदर और विदाउट एनी सपोर्ट दे कैन डू द वर्क। इसके अंदर आते हैं तो इसके अंदर आती हैं फर्दर स्टैटिक एंड डायनेमिक। अब स्टैटिक क्या है, इन अ स्टेशनरी पोजीशन आपने देखा होगा धनुरासन करते हुए, ठीक है, बेंडिंग एट द बैक, अपने हाथों को लगाना, ये सपोर्ट नहीं लेना। और आपने कार्ट व्हील देखा होगा विच इज द बेस्ट एग्जाम्पल रिगार्डिंग अ डायनेमिक। डायनेमिक का है, या आपने देखा होगा रोलिंग के बाद, समरसॉल्टिंग के बाद लैंडिंग जो है क्रश मैट या सिंपल मैट पर उनकी विद द जो उनकी लैंडिंग है वो विदाउट एनी सपोर्ट जो है वो प्रॉपर वे से होती है, दैट्स कम्स अंडर द डायनेमिक। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी की बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी अच्छी है जो कोई भी सपोर्ट वो लेना नहीं चाहते हैं। ओके बेटा, थैंक्स अ लॉट।